आज हम मानचित्र पार्ट 2 के अंतर्गत मानचित्र के कंपोनेंट्स तथा प्लान तथा स्केच के बारे में जानेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ मैप: डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल are three components of map. With the help of these components, maps are prepared. मानचित्र के घटक या अवयव: मानचित्र के 3 घटक होते हैं: दूरी, दिशा तथा प्रतीक या परंपरागत चिन्ह। मानचित्र इन 3 घटकों की सहायता से बनाए जाते हैं। पहला, डिस्टेंस: when large area of earth is drawn on a small paper, then we need a ratio between actual distance of earth and map distance. It shown by scale. Scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. Maps are prepared on 2 scales, small scale and large scale. When large area like continents or countries are to be shown on a paper or map, then we use a large scale map like 5 centimeter is equal to 500 kilometer. When a small area like a village is shown on a map, then we use large scale map like 1 centimeter is equal to 1 kilometer. Representation of scale on map. Scale can be represented on the map by 3 methods. First, by RF or representative fraction, like 1 centimeter is equal to 1 lakh centimeter. In this, 1 centimeter is shown is equal to 1 lakh centimeter or 1 kilometer. RF can be used in any country in which both units are same. When we use centimeter, then other distance is centimeter. When we use inch, then the other unit will be inch. Second, by simple statement. When by a simple statement we show the scale like 1 centimeter is equal to 1 kilometer. This means 1 centimeter is the map distance and 1 kilometer is the ground distance. Only by a simple statement we can tell about the scale. Third, by graphical method. In graphical method, we draw a line of a particular distance and it is marked in kilometers or miles according to the scale. दूरी: मानचित्र एक आलेखन होता है जो पूरी पृथ्वी या उसके एक भाग को जब छोटे कागज़ पर दर्शाते हैं तब हमें वास्तविक दूरी और कागज़ या मानचित्र की दूरी के बीच एक अनुपात की ज़रूरत पड़ती है। मानचित्र में इस अनुपात को पैमाने स्केल द्वारा दर्शाया जाता है। पैमाना स्थल की वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच अनुपात होता है। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर
10 किलोमीटर। इसमें 1 सेंटीमीटर मानचित्र की दूरी तथा 10 किलोमीटर धरातल की वास्तविक दूरी होगी। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को मानचित्र पर दिखाना हो तब छोटे पैमाने वाले मानचित्र बनाए जाते हैं, जैसे 5 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर। इसमें 5 सेंटीमीटर मानचित्र की दूरी होगी तथा 500 किलोमीटर धरातल की वास्तविक दूरी होगी। जब एक छोटे क्षेत्र जैसे एक गांव को मानचित्र पर दिखाना हो तब बड़े पैमाने के मानचित्र पर इसे दर्शाते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। ऐसे मानचित्रों को बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। जैसे गांव में लेखपाल के पास जो मानचित्र होते हैं या पर्यटक मानचित्र होते हैं वह सब बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं। सेकंड कंपोनेंट, डायरेक्शन। There are 4 cardinal directions: north, south, east and west. Between north and east we can draw a secondary direction that is known as northeast direction. Between south and east we can draw southeast. Between south and west we can show southwest, and between north and west we can show northwest direction. By these secondary direction we can know a detailed location of a particular location. दिशा। सामान्यतः मानचित्र में ऊपर दाहिनी तरफ एक तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर U या उत्तर लिखा होता है। यह तीर उत्तर दिशा को दर्शाता है। मानचित्र में 4 प्रधान दिग्बिंदु या दिशाएं हैं। ये 4 मुख्य दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम हैं। इन 4 दिशाओं के बीच में उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम 4 गौण दिशाएं और खींची जा सकती हैं, जिससे मानचित्र में और सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। सिंबल्स। On the map we cannot show temples or road in its true size due to scarcity of space. So we use letters, shades, colors, pictures or line as a symbol of particular feature. प्रतीक। किसी मानचित्र में वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां जैसे भवन, सड़क, पुल आदि दिखाना संभव नहीं होता है, क्योंकि जगह की कमी होती है। इसलिए वह निश्चित अक्षरों, छाया, रंगों, चित्रों या रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। इन प्रतीकों के द्वारा कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान की जा सकती है। स्केच। स्केच इज ए ड्राइंग which is not based on a scale. It is drawn on the basis of memory or local observation, like we draw a sketch of location of our house for our friend. रेखा चित्र। रेखा चित्र एक आलेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त या स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। जैसे कभी हम अपने दोस्त के लिए रास्ते की जानकारी के लिए एक कच्चा आलेखन बनाकर भेज सकते हैं,
जिसकी सहायता से वो हमारे घर आ सकता है। प्लान Plan is a drawing on a small area on large scale. We can draw a plan of our school, building or our classroom. In this we can show detailed information like our sitting position of all the students in the room, blackboard, windows, door, etc. खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। इसमें हम बहुत सी जानकारियाँ दर्शा सकते हैं, जैसे हम अपने स्कूल या कक्षा का एक रेखा चित्र बना सकते हैं, जिसमें विस्तृत जानकारी दर्शाई जा सकती हैं। कक्षा में जितनी भी डेस्क चेयर हैं वो दर्शाई जा सकती हैं। ब्लैक बोर्ड दर्शाया जा सकता है। विंडो तथा डोर दर्शाए जा सकते हैं।